PTI ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا معاملہ ہے۔ عمران خان نے حکومت کو جواب دینے کے لیے جواب حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد عمران خان کی انتخابی مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ ہے۔ PTI ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا یہ معاملہ ہے۔ عمران خان نے حکومت کو جواب دینے کے لیے جواب حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد عمران خان کا انتخابی مہم کو بھی مزید تیز کرنے کا فیصلہ ہے۔ PTI ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا یہ معاملہ ہے اور عمران خان نے حکومت کو جواب دینے کے لیے جواب حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت بتائے گا جواب حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اور اس بارے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ عمران خان نے انتخابی مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان ڈاکٹر کی اجازت ملنے کے بعد خود حکومت کو ٹائم دینے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ عمران خان نے جلسوں کا شیڈول تیار کرنے کے لیے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کر دی ہے اور انتخابی مہم میں رجیم چینج کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے ایشو بنایا جائے گا۔ اکنامک ٹیم کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی گئی اور مقررین معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے PTI کے چیئرمین قوم کو روڈ میپ دیں گے۔ سوشل میڈیا ٹیم کو حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں اور مہنگائی کے ایشو کو اجاگر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز کی جانب سے 70 ارکان کے استعفے منظور کیے جانے کے بعد عمران خان نے ریاست کی قیادت میں دیگر رہنماؤں کو باقی استعفوں کی منظوری کے لیے بھی ٹاسک کیا اور الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ اور ڈور ٹو ڈور مہم کو میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی گئی۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کا پیغام گھر گھر پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، لیاقت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ PTI ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا معاملہ ہے۔ عمران خان نے حکومت کو جواب دینے کے لیے جواب حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ سینیٹر اعظم سوادی کہتے ہیں شفاف الیکشن کے بغیر ملکی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ شہباز شریف نے ملک کے 16 ارب روپے ہڑپ کر لیے ہیں۔ ملک ڈوب رہا ہے اور ہم بانسری بجا رہے ہیں۔ مزید کیا کہتے ہیں بتائیں گے راحیل علی اپنی اس رپورٹ میں۔ انتخابات کی تیاریاں، PTI کی ڈور ٹو ڈور مہم۔ PP 145 میں انتخابی مہم کے دوران سینیٹر اعظم سوادی کی میڈیا سے گفتگو، بولے اربوں روپے لوٹنے والوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ عمران خان کی گھڑی پر بلا وجہ واویلا کیا جا رہا ہے۔ میرے کپتان کے اوپر صرف ایک گھڑی جو اس نے خریدی تھی وہی توشہ خانہ چل رہا ہے اور ملک کو لوٹنے والے آج عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں کے جج ان کو دودھ سے نہلاتے ہیں کہ جائیں آپ پاک صاف ہو گئے۔ رہنما PTI نے کہا کہ 90 دنوں میں جنرل الیکشنز ہونے چاہیے، جو انصاف فراہم نہیں کر سکتے وہ مستعفی ہو جائیں۔ پاکستان کے نوجوان اور بیرون ملک پاکستانی، میری خواتین بہنیں، الیکشن کے لیے جگہ جگہ مہم کریں۔ ہم نے عمران خان نے ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ اب 90 دن کے اندر انشاءاللہ جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اعظم سوادی نے PP 145 میں انتخابی مہم چلائی اور اہل علاقے میں پمفلٹ تقسیم کیے۔ کیمرامین اکرام الحسن کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں نواز شریف نے معافی مانگ کر واپس نہیں آنا۔ نواز شریف نے ریاست کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ملکی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ جاوید لطیف کی چیئرمین PTI پر الزامات کی بوچھاڑ۔ رہنما نون لیگ اپنے قائد نواز شریف کے حق میں خوب گرجے برسے، کہا کہ ملک کی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ ریاست کو نقصان پہنچانے والوں کو عبرت کا نشانہ بنانا ہوگا۔ نواز شریف نے اپنے ساتھ ناانصافیوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کی بات کی۔ اتنا گند ڈال دیا اس عمران خان نے، اب سارے حقائق سامنے لا کر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور یہ 2 صوبوں کے الیکشن، نواز شریف جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا، جس دن شیڈول اناؤنس ہوگا دونوں صوبوں کا، نواز شریف واپسی کا اسی دن تاریخ بھی دیں گے۔ جاوید لطیف نے سوال اٹھایا کہ آج بھی ایک شخص کو مقبول رکھنا کس کی ضرورت ہے؟ قومی مفاد میں ہے کہ حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں۔ پاکستانی قوم کو جہاں سے ہم نے خاموشی اختیار کی تھی قومی مفاد میں، مگر قومی مفاد میں خاموشی نہیں ثابت ہوئی، اب ہم سارے کا سارا سبق جو قوم کو سنانا ہے وہ سنانا شروع کریں گے۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنا تمام حساب دیا اور آج بھی تیار ہے۔ عمران خان کے خلاف کیسز کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔
लाहौर में सरकारी निर्ख पर आटा फ्राहमी ट्रक्स पर की जा रही है तो आम मार्केट में दुकानों पर आम ब्रांड का आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। चक्की आटा भी 150 रुपये फ़ी किलो है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। आटे की फराहमी और कीमत की सूरत हाल में तब्दीली न आई। सस्ता स्कीम आटा ट्रकों पर और आम मार्केट में आम ब्रांड का आटा दस्तयाब है। इतवार के अलावा मखसूस पॉइंट्स पर सस्ते आटे की ट्रकों पर फरोख्त की पॉलिसी है। सस्ता स्कीम में 10 किलो आटा 648 रुपए में दस्तयाब होता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। सस्ता स्कीम आटे की फराहमी शनाख्ती कार्ड से मशरूत है। आम मार्केट में 15 किलो थैले में आटा दस्तयाब है। 15 किलो आटे का थैला 1950 रुपए तक बेचा जा रहा है। खुला सुर्ख आटा 120 रुपए, खुला सफेद फाइन आटा 130 रुपए फी किलो बिक रहा है। चक्की आटे के नर्ख 150 रुपए फी किलो तक पहुंच चुके हैं। मार्केट जराये के मुताबिक आम मार्केट में गंदुम 4500 रुपए फी मन तक दस्तयाब है, जिसके बायस आटे की कीमतों पर भी दबाव है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर में नान रोटी एक बार फिर महंगी होने लगी है। तनूर मालिकान एसोसिएशन ने रोटी मज़ीद 2 रुपये महंगी कर दी। सरकारी निर्खनामा ना होने से रोटी 18 और नान 30 रुपये तक बेचा जा रहा है, जिसमें मज़ीद इजाफे का खदशा है। रिपोर्ट करेंगी जाहिद आबिद। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। गंदम और आटे के बाद नान रोटी की महंगाई ने भी आवाम को जकड़ लिया। शहर में रोटी नान के निर्ख भी बढ़ने लगे। तनूर मालका ने रोटी और नान की कीमत में 11 रुपए तक इजाफे का मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से नई कीमत का इजरा न किया जा सका। तनूर मालका ने अज खुद निर्ख बढ़ाने शुरू कर दिए। तनूर मालका एसोसिएशन ने रोटी 2 रुपए इजाफे से 16 रुपए करने का ऐलान कर दिया। शहर में सादा रोटी 14 रुपए से बढ़ाकर 16 और 18 रुपए तक बेची जा रही है। सादा नान 24 रुपए की बजाय 25 से 30 रुपए तक बेचा जा रहा है। आवाम का कहना है कि नान रोटी पहले ही महंगी है, इंतजामिया को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान का गरीब आवाम तो मारा गया है, उसको रोटी गंदम कुछ भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जिससे थोड़ा सा गरीब आवाम की रिलीफ मिल सके। दाल देख ले, रोटी देख ले, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कि गरीब बंदा बेचारा मर गया इस टाइम। और मजीद सुना कि नान 23-35 का करने लगे और रोटी 25 की करने लगे, तो गरीब क्या करेगा आप खुद बताएं। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत छा गई है। तनूर मालकान का कहना है कि अगर बिजली, गैस, गंदम, आटा महंगा होगा तो रोटी नान महंगा करना भी मजबूरी है। आटा सस्ता कर दें, रोटी महंगी नहीं होगी। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, कितनी चीनी खरीदी और कितना माल कमाया? कैन कमिश्नर पंजाब ने शुगर ब्रोकर से हिसाब मांग लिया है। लाइसेंस की तजदीद मालियाती हिसाबात से मशरूत कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखें। शुगर मिल्स के साथ साथ शुगर ब्रोकर्स भी केन कमिश्नर पंजाब के रिडार पर आ गए। लाहौर के 33 शुगर ब्रोकर्स के लाइसेंस की तजदीद समेत 1 साल के दौरान चीनी की खरीदो फरोख्त की तफसीलात तलब कर ली गईं। ब्रोकर्स को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि लाइसेंस होल्डर्स होने के नाते आप पर लाजिम है कि सालाना हिसाबात बर वक्त जमा कराएं। ब्रोकर्स गुज़श्ता बरस के दौरान चीनी की खरीदो फरोख्त की तमाम तफसीलात फराहम करने के पाबंद हैं। मजीद कारोबार करना है तो लाइसेंस की तजदीद कराना लाजमी है। ज़राए के मुताबिक शुगर मार्केट के मामलात को दस्तावेजी शक्ल में लाने के लिए हुकूमती इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि चीनी की कीमतों में मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी की जाए। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के तूफान में गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया है। सरिया की कीमत में रोज़ पर रोज़ इजाफा होने लगा। सरिया मार्केट से ख़रीदार गायब हैं, जबकि डीलर भी परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखें। महंगाई के वार गरीब के लिए घर बनाना हो गया दुश्वार। तामीराती सामान की कीमतों में रोज पर रोज इजाफा होने लगा। सरिया 240 से 245 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। सरिये की फी टन कीमत 2,43,000 से जायद हो गई। ताजरों का कहना है कि 1 माह के दौरान सरिया 35 से 40 रुपए फी किलो महंगा हुआ। सरिया महंगा होने के बायस मार्केट में खरीदार भी कम हो गए हैं। गुज़श्ता माह सरिया 205 से 210 रुपए किलो तक मिल रहा था, मगर अब महंगा हो गया। सरिया जो इस टाइम जा रहा है ये कम से कम 2,42,000 रुपया हो गया हुआ है। 2,42,000 पहले था। ये तफाक मुगल का आ गया था 202 रुपये, लोकल आ गया था 185 रुपये। अब जो लोकल है वो 210 रुपये चला गया। माड़ा बंदा कहाँ से लेंडर डाले मुझे बता दें। रेट बहुत ज़्यादा चढ़ गए हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स इतना लगा दिया हुआ है तो और कस्टमर है कोई नहीं है। ताजर भी बहुत ज़्यादा परेशान है और कस्टमर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग खाना खाने के लिए मजबूर हुए पड़े हैं, सरिया खरीद नहीं सकते। ताजरों का मजीद कहना था कि खाम माल अचानक नायाब होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत ने होशरबा टैक्स आयद कर दिए हैं। शहर के अहम शाहरा न्यासी चौक रोड टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड़े पड़ने से ट्रैफिक की रवानी हादसात में इजाफा होने लगा है। खस्ता हाल सड़क के बाइस
शहरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मज़ीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं नियाजी चौक के ऊपर और ये बड़ी अहम शाहराह कंसीडर की जाती है लाहौर की। इतनी अहम शाहराह भी नहायत टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पर सड़क के ऊपर बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं जो कि ट्रैफिक हादसात का बायस बनते हैं, काफ़ी परेशानी का बायस बनते हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये खड्डे जो हैं किन परेशानियों का सामना बनते हैं। ट्रैफिक इधर से गुजरती है, रोजाना कोई ना कोई यहाँ पर गिर जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। मसलन कुछ छोटे छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं, जब आगे को गिरता है पीछे वाली गाड़ी वो कंट्रोल नहीं कर पाते, एक दूसरे के ऊपर ये मसलन के गिर जाते हैं। रोजाना बिला नागा ही कोई ना कोई परेशानी इधर आती है। आपने सुना कि इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले, बहुत ही अहम शाहराह है और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट ना पे से लोगों को नुकसान ज़रूर हो रहा है। यहाँ पर बाइक का सामान गिर जाता है, बच्चों को चोट लग जाती है जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। हुकूमत को चाहिए कोई एक्शन ले, इसके बायस जो खड्डे हैं इनको बंद किया जाए, जो रोड है इसको ठीक किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन। लाहौर में पोलियो मुहिम का आखिरी रोज़ पोलियो टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाए। लाहौर में 21 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट भी पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। पंजाब इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में पोलियो मुहिम में कैचअप का आखिरी रोज था। लाहौर में 21,26,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। फैसलाबाद में 15 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 9,49,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो वर्कर्स का कहना था कि लाहौर में पोलियो मुहिम कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई। टारगेट हासिल करने के साथ साथ मिसिंग बच्चों को भी ट्रेस किया गया। इस मरतबा जो हमारा लाहौर का टारगेट था वो 20,85,000 कमोबेश टारगेट था और 6,000 से करीब हम IT में काम कर रहे थे। हमारा जो है तकरीबन 90% टारगेट अचीव हो चुका है। 6 रोज में 2,28,00,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। पंजाब में 2 सालों से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड रकम खर्च की जाएगी। यूनिवर्सिटी में 100 मॉडल क्लासरूम्स और 30 ग्रेजुएट रूम्स बनेंगे। यूनिवर्सिटी जिम को भी अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी का इजलास सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने की। खजांची, प्रोवीसी, डीन, रजिस्ट्रार, सिंडिकेट, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी फाइनेंस के नामजद अफसरान ने शिरकत की। इजलास में स्टूडेंट सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड 500 मिलियन रुपए के मंसूबे शुरू करने की सिफारिश। यूनिवर्सिटी में 100 मॉडल क्लासरूम्स और 30 ग्रेजुएट्स रूम का क्याम अमल में लाया जाएगा। मंसूबों को यूनिवर्सिटी अपने वसाइल से मुकम्मल करेगी। फाइनेंस कमेटी ने 119 मिलियन रुपए से यूनिवर्सिटी के लिए कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम की डेवलपमेंट की मंजूरी दी। खिलाड़ियों के लिए 36 मिलियन रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी जिम को अपग्रेड करने का फैसला। यूनिवर्सिटी में सेंट्रल साइंस लैब के क्याम की भी मंजूरी। यूनिवर्सिटी के 100 साल पुराने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की तज़ीन और आइश का भी फैसला। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी का कहना था कि यूनिवर्सिटी अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए भी सरमायाकारी कर रही है। लाहौर की खूबसूरती ही इसकी कदीम इमारतों से वाबस्ता है। ऐसी ही एक यादगार गुजरगाह है जिसे शाही गुजरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आज भी सयाहों के दिल मोह लेती है। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। शाही गुजरगाह, जिसे शाही पगडंडी के नाम से भी पहचाना जाता है, ये गुजरगाह दिल्ली दरवाजे से शुरू होकर शाही कला तक जाती है। ये पुराने शहर की यादगारों जैसे शाही हमाम, चौक वजीर खान, सुनहरी मस्जिद, चूना मंडी गेट, बेगम शाही मस्जिद, कला लाहौर को जोड़ता है। इस मकाम को इसलिए जाना जाता है क्योंकि मुगल बादशाह दिल्ली से लाहौर जाते हुए सफर के लिए इस रास्ते का इंतखाब किया करते थे। आज इस शाही गुजरगाह के इर्द गिर्द बाजार मौजूद है। यहाँ का हर मकाम मुगलों के तासुर और सकाफत के बारे में बोलता है। आवाम वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से शाही गुजरगाह की देखभाल को सराहते हैं। शहरियों का कहना है कि ये गुजरगाह मुगलों के दौर की याद को ताज़ा करती है। शाही गुजरगाह थी और ग्रैंड फील तो है ही इसमें, लेकिन वो जो इस्लामिक टच जो है, इस्लामिक आर्किटेक्चर जो नज़र आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। जब हम स्टार्टिंग में अबाउट 5-6 ईयर्स अगो तब डेस्टिनेशन वगैरह नहीं हुई थी यहाँ पे, तभी और कंजस्टेड था बाजार। अब वर्ल्ड सिटी ने काफ़ी काम कर लिया। अभी जब मैं साल बाद वापस आया हूँ तो काफ़ी चीज़ें नज़र आ गई हैं, बहुत डेवलपमेंट किया उन्होंने उसके बाद, और टूरिस्ट एक्सपीरियंस को काफ़ी इंप्रूव किया। हम में से बहुत से लोग लाहौर शहर में मुगलों के झुकाव से वाकिफ हैं और उनका लाहौर शहर पर बहुत बड़ा असर है। लाहौर की तामीराती खूबसूरती और उसकी सकाफती खूबी इस गुजरगाह के हर हिस्से में पाई जाती है। तभी तो लाहौर को आज भी कहा जाता है कि लाहौर लाहौर है। और नाज़रीन, मुनीर नियाज़ी ने लाहौर को शहर बेमिसाल और हुस्न लाजवाल कहा तो बेजाना कहा। लाहौर कितना खूबसूरत है ये तो
देखना तो गली सुरचन सिंह ही काफ़ी है। पुरानी यादों के झरोकों में झांकती ये गली पुराने लाहौर की यादों में ले जाती है। इस गली के चर्चे बैरून मुल्क भी हैं। इस बारे ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली गेट में दाखिल होते ही अंदरून लाहौर की खूबसूरती का अंदाजा होने लग जाता है। सलीके से बनी हुई पुरानी तर्ज की दुकानें और सफाई का शानदार एहसास होता है। दिल्ली गेट में दाखिल होने के बाद दाईं तरफ दूसरी गली में दाखिल हों तो हसीन मंजर देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, ये है गली सुरजन सिंह। सुर्ख ईंटों का फर्श और पुराने झरोकों पर सजे गुलदस्ते यहाँ आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। इस गली को देखकर यूरोप का गुमान होता है। अंदरून दिल्ली गेट के शायर और हकीम सुरजन सिंह का घर आज भी इस गली में मौजूद है। गली सुरजन सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और तस्वीरें देखकर दूर दराज से लोग खिंचे चले आते हैं। एक नई जगह लग रही है, नया इन्वायरमेंट लग रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन भी किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया ये जगह देखे, बिल्कुल जैसे रोम है, मोरक्को है, इतनी सिटीज़ है, न्यूयॉर्क है, ये लाहौर भी, इतनी हमारी हिस्ट्री है, इतना हम कल्चर और खाना पीना ऑफर करते हैं। पूरी दुनिया को ज़रूर देखनी चाहिए। लोग दूर दूर से होकर आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। हम भी आए हैं, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, आज अपनी दोस्तों को घुमाने के लिए लाई हूँ। बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। गली सुरजन सिंह के मकीन भी कूचे की सफाई सुथराई और नफासत से की गई आराइश पर खुश हैं। जो लाहौर का लफ्ज़ जो आप अक्सर मुहावरों में इस्तेमाल होता है, तो जब आप अंदरून शहर में आएंगे, जब मिलेंगे लोगों से, जब अखलाक देखेंगे, तो फिर ये मुहावरा सादर आता है कि लाहौर लाहौर है। सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम है, 4 दफ़ा सफाई होती है और इसके अलावा हमारा जो लिविंग स्टेटस है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, वो भी बेहतर हो गया। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी कहते हैं अंदरून लाहौर की बहाली और खूबसूरती का काम जारी है। 2023 हमारे लिए बहुत अहम होगा और साथ साथ 2 नए जगह जो 20-25 साल से बंद थी और वो वर्ल्ड सिटी से बाहर हैं, लेकिन उसमें हमें ये एजाज़ है वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को कि हम उसको ठीक कर रहे हैं। एक है बरकत अली हॉल सर्कुलर रोड पर, ये एक तारीखी हॉल है जो 20-25 साल से बंद था। इस गली के मकानों के ग्राउंड फ्लोर्स को किराए पर लेकर बैठक बना दिया गया है, जहां सयाह आकर लाहौर के पुराने कल्चर को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। साफ सुथरी गली, जगह जगह लगे खूबसूरत फूलों के गमले। सुरजन सिंह गली आजकल सयाहों की तवज्जो का खूब मरकज बनी हुई है। यहाँ आए सयाह कहते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हों। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे यूरोप की किसी गली में आप घूम रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ इस्मा शौकत, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, मुगल दौर के शाही पहरेदार वापस आ गए। पुराने ज़माने के हथियारों से पूरी तरह लैस सिपाही बंदी खाने की हमवक्त निगरानी पर मामूर कर दिए गए हैं। मगर ये सब कुछ हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, बता रहे हैं सुहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में। बामुलाहिजा होशियार आलम पनाह तशरीफ ला रहे हैं। ऐसी आवाजें तो मतरूक हुए अब अरसा हो गया। वक्त बदलने के साथ शाही अहलकारों के अंदाज़ो-त्वार और वर्दियां भी तब्दील हो चुकी, लेकिन अगर गुजरे ज़मानों की कुछ झलकियां कहीं देखने को मिल जाएं तो यकीनन काफ़ी खुशगवार हैरत होती है। इन दिनों शाही किला लाहौर में आने वाले सयाह भी इसी खुशगवार हैरत का सामना कर रहे हैं। प्लेजेंट सा एक एक्सपीरियंस है कि ये देखना कि उस मुग़ल एम्परर में, मुगलिया दौर में गार्ड्स जो थे उनके क्या ड्रेसिंग थी। यहाँ पे मैंने देखे 2 घोड़े, उस पर मैंने सवारी करी है। हमने जो बुक्स में पढ़ा है यहाँ पे बहुत वो बाकी ताज़ा हो गया है, रियल है, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मुग़ल एरा की जो इसमें है याद वो भी ताज़ा हुई है और देख के ये लगा कि जैसे 2 दरबान हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। सीना बंद, बाजू बंद, ढाल, खौद और तलवारों से लैस इन शाही पहरेदारों की तैनाती शाही किले में वाक़े माजी की एक जेल के सामने अमल में लाई गई हैं। घोड़ों पर गश्त करते और सयाहों को गुजरे ज़मानों की झलकियां दिखलाते हुए ये पहरेदार मुकर्ररा औकात पर किले के अंदर गश्त भी करते नजर आते हैं। जाहिर है पहरेदारी उनका फर्ज जो ठहरा। एक अलग से काम जो कि टूरिस्ट की इंटरटेनमेंट और फैसिलिटेशन के ऊपर है, वो बड़ा हम पुरजोर होके वो काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल्चरल एक्टिविटीज़ जो लाहौर की पुराने तारीखी विरसा है उसको उजागर करके और लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप करते हैं। इसी तरह एक कैरेक्टर हमने एक बीच में ऐड किया है जो कि हमारे ये घुड़सवार कोचवाल। मतवक्को तौर पर मुस्तकबिल करीब में सयाहों को कदीम ज़मानों के मज़ीद किरदार भी देखने को मिलेंगे। ये तो सच है कि गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आ सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की काविशों के ज़रिए, इस तरह के इनिशिएटिव्स के ज़रिए हम गुज़रे वक्तों की किसी न किसी हद तक अक्कासी ज़रूर कर सकते हैं। और सच्ची बात तो ये भी है कि ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प भी महसूस होता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सर्दी में कमी होते ही लंडा बाजार की रौनकें मान पड़ने लगी हैं। आज के कैंप चौक में रश के बावजूद शहरी विंडो शॉपिंग तक महदूद हैं। इस बारे में से जान लेते हैं अवैस महमूद से। जी अवैस।
हम इस वक्त मौजूद हैं हाजी कैंप लंडा बाज़ार में और शहरी जो हैं वो यहाँ पर उनका खासा रश दिखाई दे रहा है। जैकेट, जर्सी, जुराबें यहाँ पर ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर कोट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर होने के बावजूद विंडो शॉपिंग जो है वो की जा रही है और शहरियों और दुकानदारों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि सर्दी का दौरानिया कम होने की वजह से शहरी जो हैं वो आमतौर पर गर्म कपड़ों की जो ख़रीदारी है उसमें मुख्तार दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ वेंडर्स मौजूद हैं, चल फिर का जो है वो कोट वगैरह जो है अपना सामान जो है वो फ़रोख्त करते हैं। उनसे बात करते हैं इस हवाले से, क्या कहते हैं। हम यही कहेंगे पहले जब सर्दी ज़्यादा होता था गाहक ज़्यादा था, अपना मर्ज़ी का हमारा मर्ज़ी का पैसा देते थे। आजकल जो है ना सर्दी जो है ना कम हो गए, तो इसलिए गाहक जो है ना अपना मर्ज़ी का रेट लगाते हैं या अच्छी चीज़ लेते हैं या पैसा भी कम बता दें। कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप। अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, लेकिन ये खान साहब जो हैं ये बहुत ज़्यादा कीमतें बता रहे हैं। जो चीज़ पसंद आए वो हम ख़रीद लेते हैं। जो चीज़ पसंद आएगी वो ख़रीदेंगे, ऐसा कहना है यहाँ पर मौजूद जो गाहक जो हैं, कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर हाजी कैंप में मामूल के मुताबिक ही जो रश है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन दुकानदार और ख़रीदार दोनों ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर सर्दी की शिद्दत जो है इसमें इजाफा होगा तो यकीनन जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त होंगी। जो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर गाहक जो हैं वो अपने मनमाने जो कीमतें जो हैं वो लगा रहे हैं और अपने रेट्स लगाने के बाद जो चीज़ें हैं वो पसंद कर रहे हैं। जो चीज़ दिल को भाए और उसके बाद उसकी माकूल कीमत हो तो वो गाहक ख़रीद रहे हैं। और इसी तरह दुकानदार जो है वो भी मजबूर हैं कि महंगे दामों फ़रोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि सीज़न जा रहा है और ज़्यादा अरसे के लिए इनको जो सामान है वो गोदामों में अपने रखना पड़ेगा। शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विंडो शॉपिंग जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मतला साफ होने पर सर्दी की शिद्दत में कतरे कमी है। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है। सूरज भी अपना रंग दिखाने लगा है। मीठी धूप से शहरी के चेहरे खिलौटे हैं, जबकि सर्दी के साथ फसाई आलूदगी में भी कमी आ गई है। मौसम का अहवाल जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत के साथ साथ जो है फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में भी कमी आने लगी है। अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत की, तो जो आज का दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 और कम से कम जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अगर मैं बात करूं कुछ दिन कबल की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था और कम से कम जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक ड्रॉप हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ़ज़ाई आलूदगी की, तो उसके कम होने की वजूहत जो है वो माहिरीन की जानिब से ये बताना है कि पिछले दिनों होने वाली बूंदाबांदी है। क्योंकि माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो स्मॉग और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजूहात में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वजह ये थी कि बारिश नहीं हो रही थी। माहिरीन का ये कहना है कि जो 24 जनवरी है उसको अच्छी बारिश होने की पेशन गोई है, तो हो सकता है कि इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आए। फ़िलहाल जो है आज का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 134 रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो FC कॉलेज है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड किया गया। सेक्टर Q का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया और DHA फेज़ 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की जानिब से कहना ये है कि जो एक गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका जो एक रेशो है वो 100 से नीचे होनी चाहिए। इसलिए अभी तक फ़िलहाल जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मुज़र सेहत है। इसलिए जब भी शहरी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और उसके अलावा जो अस्थमा के पेशेंट है वो अपने साथ इन्हेलर लेकर लाजमी निकलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा। मौसम के अहवाल आपने जाना। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।